Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. Hello everyone. Let us try to see and learn that how we can build two-dimensional arrays dynamically in C++ with the help of new operator. For this purpose, we shall be learning the concept of array of pointers. Now let us see what are array of pointers. An array of pointer is a special array where all array cells behave as pointers and can be used to store addresses of different memory locations. In our program, we'll be using one such array of pointers and it will be labeled as AOP. As you can see in the diagram shown here, this array of pointer is shown in yellow color. Now question is how we can declare this array of pointers. For declaring this array of pointers, look at the last statement shown here. We have written int star star AOP. Do remember to put two stars because if you put single star, it will not be an array of pointers, rather it will be pointer to an array. That altogether is a different topic. So what is important is we need to put two stars because in this array of pointers, every cell that will be created in this array will behave as a pointer and shall be used to point to different memory locations. Further, once we have created an array of pointers, we need to allocate memory that will be pointed to by these 8 cells which this array of pointer has. We now need to create memory for each row separately for 8 1D arrays, each of size 5. For this purpose, we have used a loop here that is shown on this slide. Using this loop, what we are going to do is we'll be creating arrays of size 5 and each individual array's starting address will be assigned to our array of pointers. This loop shall create 8 such arrays. I have tried to show this thing in the diagram and you can see that all 8 arrays created are shown in red color. तो आपका एरे बन चुका है. यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ टू डायमेंशनल एरे. ठीक है, द नेम ऑफ विच इज एओपी. क्योंकि एओपी तो है जो सारी चीजों को पॉइंट कर रहा है, तो मेन तो एओपी है ना. अब एओपी जो आपने बना लिया उसमें क्या है, उसके अंदर 8 रोज हैं, हर रो में 5 कॉलम्स हैं, मतलब 8x5 की मैट्रिक्स तैयार है. तो 8x5 की मैट्रिक्स में डाटा डालना हो, आपके पास कितने कमरे हो गए 8x5 में? 40 रूम्स. अब 40 रूम्स में डाटा फिल करने का एक तरीका है, मैं लिखूं AOP of 00 a value, then AOP of 01 another value, AOP of 02 another value, AOP of 03 another value. ऐसे 40 स्टेटमेंट लिखूं या मैं लूप्स को यूज करूं? मैं कहूंगा लूप्स यूज कर लीजिए, पावर ऑफ लूप्स को यूज कीजिए. तो यहाँ पे देखिए आपका आउटर लूप जो लगा है, आउटर लूप इज फॉर विथ डीलिंग विथ नंबर ऑफ रोज. सो हाउ मेनी रोज वी हैव? 0 से 8 तक, यानी 0 से 7 तक जाएगा. तो इट विल बी वर्किंग 7 टाइम्स. एंड वंस यू एंटर दिस रूम, जब आप रो नंबर 0 पे चल रहे होंगे, तो हाउ मेनी कॉलम्स यू नीड टू प्रोसेस? 0 से C तक, यानी 5 तक. 0 से 4 जाएगा क्योंकि लेस देन लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं है. तो 0 1 2 3 4. तो जब पहली रो की बात करेंगे तो I वैल्यू विल बी 0. सिंस 0 इज लेस देन 7, यू विल कम इनसाइड. 0 इसे R की वैल्यू से छोटा है 8 से, तो आप अंदर आ जाएंगे. नाउ यू आर मूविंग अक्रॉस योर रो नंबर 1. जो पहली रो है उस पर आप चल रहे हैं. उसमें हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 0 से C उतना ही तो कॉलम्स है. और जाते समय मैंने क्या किया है, AOP ऑफ IJ जो लोकेशन है 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, इतनी लोकेशन ही आएंगी ना पहली रो में. 8x5 की मैट्रिक्स में क्या क्या लोकेशन होंगी, कमरों के नंबर क्या होंगे? 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड 0 4. तो AOP की IJ वैल्यू जो है 0 से 4 तक जाने वाला है, I 0 ही रहने वाला है. तो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 तक जाएगा. और जाते समय यहाँ पे चाहो तो आप एक वैल्यू C आउट भी कर सकते थे. मतलब ये जो AOP ऑफ IJ है इसको C इन किया जा सकता है विद अ सुटेबल स्टेटमेंट. वी कैन आस्क द यूजर टू एंटर वैल्यू.
बट मैंने वो नहीं किया, मैंने क्या किया, सीधे सीधे जो आई और जे का टोटल था वो इसमें डाल दिया उठा के। आपको यही तो शो करना है ना कि हाउ वी कैन ट्रैवर्स द एरे। while traversing, what work you need to do, you decide. If you wish to read in values, so what you need here is a C in. यहां पे क्या लिखना चाहिए था, C in AOP of IJ। मगर मैंने C in नहीं किया, मैंने हर कमरे को भर दिया किस वैल्यू से, I और J के टोटल से। तो पहले कमरे में I और J कितने होंगे, 0 0, तो 0 + 0 उसमें क्या आ जाएगा, 0। अगले कमरे का नाम क्या होगा, 0 1, तो 0 + 1 यानी दूसरे कमरे में 1 आ जाएगा, फिर तीसरे कमरे में क्या आ जाएगा, 0 2 यानी 2 आ जाएगा, फिर 0 3। समझ में आ रही ना चीज। तो मैंने यहाँ पे क्या कोशिश की है, मैंने अपने एरे को समान से भरने की कोशिश की है, वैल्यूज से भरने की कोशिश की है। और कौन सी वैल्यूज, कैसी वैल्यूज, आई और जे इंटीजर्स, क्योंकि मेरा ये जो पॉइंटर्स बना था, आपको भूलना नहीं है आपने पॉइंटर्स किसके लिए बनाया है, डेटा टाइप इज इंट। यू हैव चोजन द डेटा टाइप एज इंट। यहां पर भी इंट है और यहां पर भी इंट है, हर जगह इंट है। तो मैंने इंटीजर वैल्यूज से एरे को भर दिया। तो आई हैव फिल्ड इन ऑल 40 रूम्स विथ इंटीजर वैल्यूज। चलिए आगे देखिए। नाउ वंस यू आर डन फिलिंग द वैल्यूज, व्हाट वी वांट इज दोज वैल्यूज दैट वी हैव जस्ट फिल्ड इन, वी वांट टू डिस्प्ले देम इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में सी आउट कर दो, ठीक है। सी आउट करोगे तो आउटपुट कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू ऑल। इस लूप में क्या हो रहा है, ये पेयर ऑफ लूप आपको फिर हर कमरे पे ले जा रहा है। आई 0 से चलना शुरू हुआ, आर तक जाएगा, जे 0 से सी तक जाएगा, मींस 0 till 7 एंड 0 till 4, एंड ईच इंडिविजुअल एलिमेंट विल बी डिस्प्लेइंग देम विद अ स्पेस इन बिटवीन। देखो स्पेस चाहिए ना, 0 और 1 के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी। और जब मेरी पूरी रो प्रिंट हो जाए तो अगली रो उसके आगे ही मत लिख देना, लाइन चेंज करना, सी आउट एंडल करना, वरना क्या होगा, 0 1 2 3 4 आने के बाद ये 1 2 3 4 5 है ना, वो यहीं पे आ जाता 1 2 3 4 5, और पूरा एरे एक लाइन में आ जाता है ना। ऐसा नहीं करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करना है ना। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या कहता है, आफ्टर प्रिंटिंग इन वन रो चेंज द लाइन। तो मैंने वही काम किया है, अब देखो एलिमेंट्स को प्रिंट किया और लाइन चेंज कर दी, सो सिंपल। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, you should not forget that you have reserved the memory dynamically, and whenever you reserve memory dynamically, freeing up that memory is your responsibility. You have to take care of that. मेमोरी आपने बनाई है तो मेमोरी को फ्री करने का काम भी आप ही की जिम्मेवारी है। जो कुछ न्यू से बनेगा उसको डिलीट से डिलीट नहीं किया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी प्रोग्राम में, वो मेमोरी एलोकेटेड रहेगी। अब सवाल यह है कि मैं क्या डिलीट करूं। अगर मान लो मैं ये वाली स्टेटमेंट ना लिखूं, ये फॉर लूप और जो पहला डिलीट है ये ना लिख के सीधे मैं एओपी को उड़ा दूं, तो एओपी क्या था, एओपी मेरे, आप भूलना नहीं है एओपी क्या था, एओपी में 8 पॉइंटर थे। अगर आप एओपी डिलीट करेंगे वो 8 पॉइंटर डिलीट हो जाएंगे, मगर वो 8 पॉइंटर्स अल्टीमेटली क्या कर रहे थे, 5 रोज को पॉइंट कर रहे थे, सॉरी 8 रोज को। ये 8 पॉइंटर 8 रोज को पॉइंट कर रहे थे। आपने एओपी डिलीट किया तो एओपी चला गया, मगर वो जो 8 रोज बनाई थी लूप चला के, वो कैसे जाएंगी, उनको भी तो डिलीट करोगे ना। तो फर्स्ट यू नीड टू डिलीट दोज रोज। वो रोज जो आपने मैन्युअली क्रिएट की थी, आपको मैं पीछे ले जाके दिखाता हूं। यहां पे देखिए ये लूप चला के आपने हर एक रो बिल्ड की हुई है। फर्स्ट यू नीड टू फ्री अप द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय दीज रोज, ऑल 8 रोज यू नीड टू डिलीट। ये जो 8 पॉइंटर हैं, एओपी ऑफ 0, एओपी ऑफ 1, एओपी ऑफ 2, एओपी ऑफ 3, इन्होंने जो जगहों को पॉइंट किया था वो जगह फ्री करनी है। जब वो जगह फ्री हो जाएगी तब जाके आप एओपी को फ्री करेंगे। तो यहाँ पे लूप में क्या काम हो रहा है उसको समझिए। पहले मैंने लूप चला के 8 रोज जो बनाई थी वो डिलीट कर दी। और डिलीट कौन सा वाला यूज किया, सिंस यू आर डिलीटिंग एरे, सो डिलीट विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज टू बी यूज्ड, सिंपल डिलीट इज नॉट टू बी यूज्ड। So delete with square brackets will delete, first of all it will delete all 8 rows that we built dynamically, and after deleting those rows you are in a position to delete AOP. With this you have successfully freed up the memory which your 2D array was occupying. So I think this is not very difficult to understand.
If you find it difficult, I'll suggest that please go through the topic again. 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, फिर अपना प्रोग्राम खुद बनाने की कोशिश करोगे, लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे. पॉइंटर्स थोड़ा सा ट्रिकी हैं, मगर इम्पॉसिबल जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है. सो थैंक यू, इतना ही बताना था आपको इसमें.